Good evening, all of you. Very good evening. Welcome, all of you, to the session. Please quickly join us. We'll start our session soon. Please join us soon. Alina, Ananya, Pratibha, Anu, Vivek, Suptika, Raviranjan. Good evening, everyone. Papu Kumar. Good evening. Yeah, Raviranjan. Good evening. Sitapa, Bavlin. Good evening, everyone. Sitish, Monisha, Ria. Please quickly join us. Dipti, Vanshika, Parth, Sakhi. Good evening. Tasneem. Okay, chalo, let us start our session. Say, today we'll start a different thing. Regulation of glycolysis. Glycolysis का नाम सुन के I'm sure many of you, in fact most of you will think that glycolysis is known to us. Right? कि glycolysis में और क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पता है हमको. राइट? ओके, चलो देखते हैं क्या मैं पढ़ा सकता हूँ ऑन glycolysis. So please pay attention. I'm sure you will never feel bored because we are going to talk about something else. You may not have studied glycolysis to that much detail. We'll be covering up today. Okay, चलो. तो टाइटल से शायद आपको अंदाजा लग रहा होंगे कि ये जो ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन है वो कैसे होगा, मतलब हाउ विल ग्लाइकोलिसिस बी रेगुलेटेड. ग्लाइकोलिसिस विल बी रेगुलेटेड आइदर बाय फैक्टर्स और बाय एंजाइम्स. तो इस सेशन में ग्लाइकोलिटिक का जो पाथवे है, जो ग्लाइकोलिसिस वाला जो पाथवे है, वो हम लोग ज्यादा उतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज ऑलरेडी नोन टू यू. बट ग्लाइकोलिसिस का जो रेगुलेशन है, पाथवे रेगुलेशन जो है, which is actually important for your entrance point of view, will be putting more emphasis on regulation than on pathway. क्योंकि pathway तो बहुत सिंपल है, सबको पता है pathway में क्या होता है. ओके, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. देखो, ग्लाइकोलिसिस एक बार रेगुलेशन शुरू करने से पहले एक बार आपको पाथवे में दिखा देता हूं, जो कि आपको पता है, इनफैक्ट सबको पता है. तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? व्हाट हैपेंस इन ग्लाइकोलिसिस? ग्लूकोज विल बी ऑक्सीडाइज्ड, right? Glucose will be oxidized. So if you look at the process, glucose से शुरू होगा and end product will be pyruvate. End product will be pyruvate. Now say glucose में कितना कार्बन है? 6 कार्बन. आपको पायरुवेट मिल रहे हैं. पायरुवेट में कितना कार्बन है? 3 कार्बन, 3 कार्बन्स. So you are starting with 6 carbon, you are ending with 3 carbons. Are you losing 3 carbons anywhere down the line? आप समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? You are starting with 6 carbon, which is glucose. You are ending with pyruvate, which has 3 carbons. तो आप 3 कार्बन कहीं पे लूज कर रहे हो. Are you losing 3 carbons anywhere? No. Then it is actually 2 molecules of pyruvate. It is basically 2 molecules of pyruvate, right? Okay. क्या है विवेक? 3 DNA स्ट्रैंड्स है 40%. आपका समझ में नहीं आया विवेक? आप वीडियो नहीं देखे हो. अगर आप वीडियो सही से देखे होते तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आने का कोई बात ही नहीं हो सकता है. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. आई ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द क्लास इटसेल्फ. ओके, तो मैं जो डिस्कस किया हूं यहां पे बोलने से मैं वही डिस्कस करूंगा फिर. बट एज आई ऑलरेडी स्टार्टेड ग्लाइकोलिसिस, आई डोंट वांट टू बी डाइवर्टेड, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि वहां पे फिर चला जाएगा तो
ग्लाइकोलाइसिस का जो फ्लो है दैट विल बी डिस्टर्ब. आई डोंट वांट टू किल दैट. ओके, आप क्वेश्चन पूछा, इट विल बी देयर इन माय माइंड, बट मैंने बहुत डिटेल में उसको डिस्कस किया था, एंड आई एक्सपेक्ट यू शुड हैव डेफिनेटली अंडरस्टूड इट. I don't know why you couldn't understand, but I'll discuss it, but later, not now. Okay? अभी हम लोग शुरू किए हैं, so इसको पहले आगे बढ़ने दो. So look at this. You are starting with glucose, which is C6. You are ending with pyruvate, which is C3. मतलब 3 मॉलिक्यूल है यहाँ पे. So basically you will get 2 molecule of pyruvate, right? Simple thing, बहुत simple thing. चलो एक बार देख लेते हैं पूरा ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, एक बार देख लेते हैं. तो ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate to fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate, this blah blah blah, everything is known to you. You have studied many times. You studied in 8th standard, 9th standard, 10th standard, 11th standard, 12th standard, everywhere you have studied this glycolytic pathway. हाँ कि नहीं? ओके, एनीवे देखो यहां से ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से किस लेवल ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले एक बार पाथवे से मैं देख लेता हूं. ठीक है, देखो. तो आपका प्रोसेस बिगिन हो रहे 6 कार्बन से. आपका प्रोसेस बिगिन्स विद 6 कार्बन, चाहे ग्लूकोज हो, ग्लूकोज 6-phosphate हो, फ्रुक्टोज 6-phosphate हो, फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate, इट ऑल कंटेन्स 6 कार्बन. ये जो 6 कार्बन से 3 कार्बन डिवीजन कहां हो रहे हैं? डिवीजन हो रहे हैं यहां पे. फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate से डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate, यहां पे हो रहा है आपका डिवीजन. मतलब 6 कार्बन विल बिकम 3 कार्बन एंड 3 कार्बन. इसके बाद आपको जो भी इंटरमीडिएट मिलेगा, एंड ये जो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate, बोथ द मॉलिक्यूल्स आर आइसोमर, so they can be diagonally interchanged. And इसके बाद जो भी इंटरमीडिएट मिलेगा that will be on the basis of glyceraldehyde 3-phosphate. देखो glyceraldehyde 3-phosphate to मतलब glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate to 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglycerate to phosphoryl pyruvate to pyruvate. That's it, right? बहुत सिंपल. अब यहां पे फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किस एंगल से इस पाथवे को आपको स्टडी करना है. Now I'll tell you that. देखो, नंबर 1, my first question to you. यहां पे पहले देखो, यहां पे जो पूछा जाएगा that will be on the basis of enzyme, कि कौन सा एंजाइम कौन सा स्टेप कन्वर्ट कर रहे हैं. That will be one, you can say very simple example of question, like glucose to glucose 6-phosphate hexokinase, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate phosphoisomerase, right? So like that, ये जो एंजाइम का नाम है ये आपको याद रखना है, वो बहुत सिंपल है, यू कैन इजीली रिकॉल इट, दैट्स नॉट अ बिग डील. देखो वो क्वेश्चन का और थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं. एक बात बताओ, ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, डज इट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में कहीं पे आपको ऑक्सीजन का जरूरत होता है? डज इट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? अब कहीं पे देख रहे हो कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूरत है? नो. दैट मीन्स glycolysis process itself is independent of oxygen. चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, glycolysis will happen. Glycolysis will proceed till pyruvate. Till pyruvate ग्लूकोज से आपको मिल जाएगा, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो. Now coming to the point. तो आपको लगेगा इसका मतलब चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर? डेफिनेटली असर पड़ेगा. That means what will be the effect? Absence or presence of oxygen on glycolysis. What will be the effect? Effect will be in terms of ATP. Effect will be in terms of ATP. ठीक है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं. अच्छा, यहां पे मैं आपको पहले समझा देता हूं. इफेक्ट विल बी इन टर्म्स ऑफ एटीपी. क्या इन टर्म्स ऑफ एटीपी? देखो ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो, यहां पे एक बार एटीपी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहां पे -1 एटीपी, यहां पे भी -1 एटीपी, क्योंकि एटीपी यूटिलाइज हो रहा है यहां पे, राइट? देन अब देखोगे यहां पे आपको 2 एटीपी मिल रहे हैं, यहां पे भी आपको 2 एटीपी मिल रहे हैं. 2 मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स. अदरवाइज प्रैक्टिकल आप देखोगे सिंगल रिएक्शन में आपको 1 ही एटीपी मिलेगा, राइट? यहाँ पे भी 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा. बट द थिंग इज, जैसे ये 2 मॉलिक्यूल करके हम लोग कैलकुलेट करें तो इट विल बिकम 2 ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन. नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पे जो NADH आपको मिला, इस NADH से आपको ATP मिलेगा कि नहीं?
that depends on the presence of oxygen. देखो ये जो है यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, दीज आर लाइव एग्जाम्पल्स. मतलब ये आपका चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, यू विल गेट इट. बट ये जो NADH है, इस NADH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल गो टू ETC ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यहां पे आपको ATP मिलेगा. अंडरस्टूड? ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ये जो NADH है, ये NADH माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा टू गिव यू ATP. दैट हैपेंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अदरवाइज अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हुआ देन आपको NADH ही मिलेगा, सिंपली NADH मिलेगा. मतलब NADH से और कोई आपको ATP नहीं मिलेगा, क्योंकि NADH से ATP तभी मिलेगा if NADH goes to ETC, if NADH goes to mitochondria. Understood? So for that it requires presence of oxygen. So now calculate. First we will calculate in absence of oxygen, then we will calculate in presence of oxygen. ठीक है? कितना ATP है. तो जब ऑक्सीजन नहीं है, कितना होगा? यहां पे -2, यहां पे +4, मतलब +2 ATP. जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो, मींस एनारोबिक कंडीशन. जब एरोबिक होगा देन क्या होगा? ये तो ऑलरेडी मिल रहा है आपको, इसके साथ और क्या मिलेगा? ये जो है NADH से ATP, दैट विल बी योर एडेड एडवांटेज. Single molecule of NADH will give you 3 molecule of ATP. So 2 molecules है, so 2 into 3 6, it will be 6 ATP. So this will be 8. Understood the basic difference in terms of ATP? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है then you will get 8 ATP. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है then you will get 2 ATP. Understood? नहीं, देखिए संजना, ये जो 2.5 वाला बोल रहे हो ना, वेट, इसको 2.5 भी बोल सकते हो, इसको 3 भी बोल सकते हो. बोथ आर करेक्ट. सो देयर इज नथिंग एनी एम्बिग्यूटी कि सर इसको 3 लेकर चले या 2.5 लेकर चले. आपका ऑप्शन में जो देगा, अकॉर्डिंगली यू कैन कंसिडर इट. 3 भी करेक्ट है, 2.5 भी करेक्ट है. मतलब देयर इज नथिंग लाइक 2.5 ही करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट है. इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है? कैलकुलेशन में यू कैन कंसिडर 3 ऑल्सो, यू कैन कंसिडर 2.5 ऑल्सो. बोथ आर एक्सेप्टेड. अंडरस्टूड? बट यस, ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा कि 3 का हिसाब से भी होगा एंड 2.5 का हिसाब से भी होगा. दैट विल नॉट हैपन. आइदर 3 के हिसाब से देगा या तो 2.5 के हिसाब से देगा. ठीक है? तो नथिंग टू फाइट कि सर NADH से तो आपको 2.5 मिलेगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट. यू कैन कंसिडर 3 ऑल्सो, यू कैन कंसिडर 2. दैट इज अप टू यू, नॉट एन इशू. Now coming to the other point, देखो ग्लाइकोलिसिस का पर्पस क्या है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. पर्पस ऑफ ग्लाइकोलिसिस है एनर्जी मिलना, ATP मिलेगा, राइट? पर्पस ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है? वी विल गेट एनर्जी, यू विल गेट ATP. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर आपके पास ATP कंसेंट्रेशन काफी हाई है, सेल में ATP कंसेंट्रेशन काफी हाई है, या तो NAD प्लस, NADH नॉट NAD प्लस, इसको मैं इरेज कर रहा हूं. NADH कंसेंट्रेशन काफी हाई है, दैट मीन्स व्हाट? चाहे ATP हो चाहे NADH हो, अगर इसका कंसेंट्रेशन हाई है, these two represents high energy status of a cell. These two represents high energy status of a cell. Understood? Similarly, आप इसको उल्टा सोचो, ATP कंसेंट्रेशन कम, NADH कंसेंट्रेशन भी कम है. And जब इन दोनों का कंसेंट्रेशन कम होगा तब AMP कंसेंट्रेशन हाई, या तो ADP कंसेंट्रेशन हाई, या तो NAD प्लस कंसेंट्रेशन विल बी हाई. अगर ऐसे कंडीशन है, दिस विल रिप्रेजेंट्स लो एनर्जी स्टेटस ऑफ अ सेल. अंडरस्टूड?
नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कौन सा कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एक्टिवेटेड रहेगा? जब आपको एनर्जी चाहिए, मींस व्हेन देयर इज अ डिमांड ऑफ एनर्जी इन यू. If there is a demand of energy, please listen to me very carefully. If there is a demand of energy, then glycolysis process will be activated. Demand of energy means you should be in low energy status. मतलब in this condition, low energy status. तो आप जब low energy status में हो, there is a demand of energy. So glycolysis process will be activated. अब मान लो कि यू आर नॉट इन डिमांड ऑफ एनर्जी, यू आर ऑलरेडी फुल विथ एनर्जी, glycolysis process will be stopped. Glycolysis process will be inhibited. Understood the basic funda of glycolysis, when it will be activated, when it will be stopped. So glycolysis से आपको एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलता है. if you already have energy, you don't need further glycolysis, right? अगर आपके पास ऑलरेडी एनर्जी है, why do you need glycolysis? आपको नहीं चाहिए, तो glycolysis will be stopped. Understood? So आपको चाहिए या नहीं चाहिए, how will you come to know? On the basis of this concentration. ATP concentration, NADH concentration अगर high है, that represents high energy status. Eventually the glycolysis process will be stopped, inhibited. Understood? Okay, एक चीज हो गया. नंबर 2, जब हम लोग एटीपी फॉर्मेशन का बात करते हैं कि वी विल गेट एटीपी, ये जो प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन. फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिलेशन. व्हाई फॉस्फोरिलेशन? देखो, एटीपी आपको कहां से मिलेगा? एडीपी से मिलेगा. एडीपी के साथ एक फॉस्फेट अटैच कर दो, आपको मिल जाएगा एटीपी. दैट मीन्स, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब माय क्वेश्चन इज, एडीपी के साथ ये जो फॉस्फेट अटैच होगा, व्हिच विल गिव यू एटीपी. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पीआई? ये पीआई क्या है? इट्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अब माय क्वेश्चन इज, इसका सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी? आई मीन व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट फॉस्फेट? व्हाट इज द सोर्स? अंडरस्टूड माय पॉइंट? ये जो फॉस्फेट है, can it be source of inorganic phosphate? You know the meaning of inorganic phosphate? Like phosphate pool, calcium pool, magnesium pool, manganese pool, aluminum pool. These are all inorganic molecules, right? So phosphate is also inorganic molecule. Inorganic pool, मान लो कि phosphate का एक inorganic pool है, इस पे only phosphate है, phosphate. Now my question is there any enzyme which can add inorganic phosphate to ADP to make it ATP? क्वेश्चन नहीं समझा ना? ओके, चलो talk about the first example of glycolysis. What is the first example of glycolysis? Hexokinase, right? Glucose to glucose 6 phosphate. राइट? यहां पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या हो रहा है? ये जो एटीपी है, एटीपी टू एडीपी एंड पीआई, ये जो रिलीज फॉस्फेट है, यही रिलीज फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ अटैच होकर फॉस्फेट बनाएगा यहां पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट? ओके, नाउ माय पॉइंट इज, यह तो एक्स्ट्रा पेज लिया, यहां से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं. ये जो फॉस्फेट है, दिस फॉस्फेट हैव 2 different sources. Means this phosphate may come from 2 different sources. Now what do we mean by 2 different source? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसका एक सोर्स हो सकता है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लाइक इनऑर्गेनिक कैल्शियम, ओनली कैल्शियम, इट्स अ कैल्शियम पूल. इनऑर्गेनिक मैग्नीशियम, इट्स अ मैग्नीशियम पूल. Similarly, you can have inorganic phosphate like phosphate pool.
नाउ द क्वेश्चन इज, अगर यहां पे कोई एंजाइम है जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पूल से एक फॉस्फेट को लेके एडीपी के साथ अटैच कर देंगे सो दैट इट विल बिकम एटीपी, इज देयर एनी एंजाइम? यस, देयर इज एन एंजाइम, बट द प्रॉब्लम इज इसको अटैच करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट पूरा जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, वहां पे आप देखोगे ये जो फॉस्फेट आ रहे हैं, ये जो फॉस्फेट है which will be attached to ADP, this phosphate will not come from inorganic phosphate. This phosphate will not come from inorganic phosphate. Then कहां से आएगा phosphate? This phosphate will come from phosphate rich compound. What do you mean by phosphate rich compound? Glucose 6 phosphate is a phosphate rich compound. मतलब glucose 6 phosphate can release the phosphate so that it will become glucose again. Understood the meaning of phosphate rich compound? So phosphate rich compound मतलब क्या? जिसके पास phosphate group है, it can donate the phosphate group so that वो जो phosphate released हुआ, that phosphate will be added to ADP to become ATP, and that process will be much easier than taking a phosphate from inorganic phosphate. Let me take you the example of last step of glycolysis. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट। अब चलो मैं आपको समझा रहा हूं, देखो, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट। नाउ विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो मैं बोल रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू फॉलो माई स्टेप। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यू से 3 times फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, अगेन यू से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यू से अगेन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। बेसिकली क्या है? इट्स अ पायरुवेट मॉलिक्यूल, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मतलब फॉस्फेट इज अटैच्ड टू पायरुवेट। अंडरस्टूड? आई रिपीट अगेन, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मतलब फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू पायरुवेट। नाउ इनॉल क्या है? इनॉल इज अ फॉर्म लाइक कीटोल, एनॉल, these are different forms, right? So just ignore it. It's a you can say a kind of isomer. Okay, it's a kind of isomer. So only difference is, what is the difference? Like for an example, if I ask you what is the difference between glucose and glucose 6 phosphate? What is the difference between glucose and glucose 6 phosphate? Simply presence of phosphate. एक phosphate यहाँ पे attached है. That is the only difference. Otherwise, structure of glucose and structure of glucose 6 phosphate is absolutely same, right? Same way, what is the difference between phosphoenol pyruvate and pyruvate? Both are same. You attach on phosphate group to pyruvate, it will become phosphoenol pyruvate. You understood मैं जो बोल रहा हूं? Please try to learn. What is the difference between phosphoenol pyruvate and pyruvate? Phosphoenol pyruvate. I repeat again, phosphoenol pyruvate. So you attach phosphate group to pyruvate, it will become phosphoenol pyruvate. Now, so phosphoenol pyruvate is also a phosphate rich compound. It can release the phosphate. The moment it releases phosphate, it will become pyruvate. And that released phosphate will be added to ADP to make it ATP. Understood? So यहां पे ये जो phosphate आ रहे, who is the donor of that phosphate? Who is the donor of that phosphate? Who is donating you? A compound, a phosphate rich compound. ये जो phosphate है, it is not coming from an inorganic phosphate pool. It is not coming from inorganic phosphate pool. It is coming from a phosphate rich compound. So ये जो process है, process for the formation of ATP, which is called phosphorylation. यहां पे क्या है? Who is the phosphate group donor? A phosphate rich compound. That's why this process is known as substrate level phosphorylation. मतलब phosphorylation is happening at the state of a substrate, at the level of a substrate. That's why it is called substrate level phosphorylation. So what do you mean by substrate level phosphorylation? When phosphorylation occurs, means when addition of phosphate occurs
at the level of substrate. Means inorganic phosphate will come from a phosphate rich compound. Understood? So जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का 2 इवेंट्स है ग्लाइकोलिसिस में. एक तो है लास्ट वाला स्टेप फॉस्फोनल पाइरुवेट टू पाइरुवेट, एंड उससे पहले 1,3-bis phosphoglycerate to 3-phosphoglycerate. Simply 1,3-bis phosphoglycerate. You repeat 3 times, you will understand. 1,3-bis phosphoglycerate. That means what? Glycerol is a molecule. 3 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में एक फॉस्फेट ऐड करो, थर्ड कार्बन में एक फॉस्फेट ऐड करो, इट विल बिकम 1,3-glycerol. अंडरस्टूड? समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स 3 कार्बन. आप 2 फॉस्फेट ऐड कर दो, वन विल बी अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन, द अनदर विल बी अटैच्ड टू थर्ड कार्बन, इट विल बिकम 1,3-bis phosphoglycerate. नाउ जब 1,3-bis phosphoglycerate टू 3-phosphoglycerate हो रहे, दैट मीन्स 1,3-bis phosphoglycerate विल रिलीज 1 फॉस्फेट. कहां से रिलीज करेगा? फर्स्ट कार्बन से रिलीज करे, राइट? वो जो रिलीज फॉस्फेट है दैट विल बी अगेन एडेड टू एडीपी टू गिव यू एटीपी. तो वहां पे भी जो आपको एटीपी मिल रहे हैं, हु इज द डोनर? 1,3-bis phosphoglycerate. Understood? So what you understood? In the process of glycolysis, now I'm coming to the point. In the process of glycolysis, आपको एक भी एटीपी ऐसे नहीं मिलेगा जो कि अदर देन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है. नाउ अदर देन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. अब देखो मैं आपको जो बोल रहा था, मेरा कंसर्न क्या था? एडीपी के साथ फॉस्फेट अटैच्ड होगा व्हिच विल गिव मी एटीपी. दैट वाज माय कंसर्न. बट माय बिगेस्ट कंसर्न वाज हु विल डोनेट दिस फॉस्फेट ग्रुप? Who will donate it? Will it be donated by a substrate which already have a phosphate group, or will it be donated by a inorganic phosphate? मैं आपको क्या बताया? अगर this phosphate is coming from inorganic phosphate, then this attachment will be a very, very tough job, which occurs only in case of oxidative phosphorylation in mitochondria. A process is known as oxidative phosphorylation. And वहां पे ये जो attachment होता है, it requires a tremendous proton flux. It requires a tremendous proton flux. I'm sure you will be knowing that in my proton motive force. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ाऊंगा, then I will explain what is that proton motive force. Because of that huge proton motive force, proton flux, this inorganic phosphate will be attached to ADP. And there is an enzyme employed over there. What is the name of that enzyme? ATP synthase. ATP synthase is the enzyme which will attach this phosphate from inorganic phosphate pool. And वहां पे जो ATP होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, through a process called oxidative phosphorylation, वहां पे होगा in presence of oxygen. In presence of oxygen. Understood? So ये जो attachment है, phosphate will come from inorganic phosphate. That attachment will take place in presence of tremendous proton flux. A process called proton motive force. Right? So ये जो process है, this is not involved in glycolysis. क्योंकि glycolysis होता है साइटोप्लाज्म में. And ये जो मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का बात कर रहा हूं, that will take place in mitochondria. So two places are different. Understood? We are talking about only cytoplasm because glycolysis means it happens in cytoplasm only. समझ रहे हो? So पूरा जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ये जो हम लोग इतना सारा एटीपी का कैलकुलेशन किया, ये जो एटीपी का कैलकुलेशन किया, आप थोड़ा देखो तो आपको एटीपी का कहां मिल रहे हैं? फर्स्ट 2 स्टेप में, मतलब फर्स्ट इन द सेंस फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में वी आर लूजिंग एटीपी -1, सो छोड़ो उसको. जहां पे हमको गेन हो रहे हैं +2, जहां हमको गेन हो रहे हैं, both the gains are from substrate level phosphorylation. Understood? Both the gains are from substrate level phosphorylation. समझ में आया? यस, सबका समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड. नाउ कम टू अ क्वेश्चन. नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. आप यहीं पे रहो, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज, ठीक है? ओके, गुड, सबका समझ में आ गया.
Is there any possibility using NADPH in glycolysis hypothetically? Dipti? Hypothetically. Possibility is less. It is there, chance is there, but possibility is less. Anyway, I'm coming to the question. Now I'm coming to the question. क्योंकि हमेशा you know what you do, you always calculate the ATP. Either in aerobic glycolysis, anaerobic glycolysis, you do the calculation. I know. Now listen to me and tell my answer. You tell me आपको ग्लूकोज से पायरुवेट तक, मैं इसका मैं बात कर रहा हूं, ग्लूकोज टू पायरुवेट तक, इससे बियॉन्ड आपको जाने का जरूरत नहीं है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट तक मान लीजिए यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या तो ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब बोलो आपको कितना एटीपी मिलेगा, आपको कितना एटीपी मिलेगा थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। समझ रहे हो? मैं सेम क्वेश्चन को थोड़ा स्प्लिट कर दिया एट आईआईटी लेवल और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आप किससे ज्यादा फेमिलियर हो, आप जानते हो कितना एटीपी होता है। एरोबिक में 2 होता है, एरोबिक में 8 होगा, एनारोबिक में 2 होगा, राइट। सेम क्वेश्चन को मैंने स्प्लिट कर दिया, एरोबिक में कितना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव में कितना होगा, एनारोबिक में कितना सबस्ट्रेट लेवल होगा, कितना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, बताओ। अब शायद क्वेश्चन समझा नहीं, कुछ लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं आपको पूरा एटीपी का फॉर्मेशन दिखा रहा हूं, कहां कहां क्या होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप में आपको -1, थर्ड स्टेप में -1, राइट। देन मिडिल में एक स्टेप में आपको एनएडीएच मिल रहा है, यहां से आपको एटीपी मिल सकता है, यहाँ पे आपको एटीपी मिल सकता है, तो 2 एनएटीपी मतलब 6 एटीपी मिल जाएगा। देन आपको मिलेगा +2, देन आपको अगेन मिलेगा +2, राइट। माय क्वेश्चन था, मैंने स्प्लिट कर दिया सबस्ट्रेट लेवल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या है। ये भी है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये भी है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, अंडरस्टूड। ये जो 6 एटीपी आपको मिल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, दिस विल कम फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये जो आपको यहाँ पे जो +4 आपको मिल रहे हैं, ये जो आपको +4 आपको मिल रहे हैं, दिस इज मेनली फ्रॉम, दिस इज नॉट ओनली मेनली, दिस इज ओनली फ्रॉम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, अंडरस्टूड। नाउ अब स्प्लिट कैसे कर दिया। एंथनी सर रिलीज तो 2 एटीपी होता है, रिलीज 2 एटीपी तो होता है मतलब उसके बाद 4 एटीपी ऐड होता है, बाकी 2 एटीपी कहाँ से आता है सर। रिलीज तो 2 एटीपी होता है, व्हाट डू मीन बाय रिलीज? एटीपी फॉर्मेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट एटीपी फॉर्मेशन। ना समझ में आया अभी? सो जब ऑक्सीजन होगा, पहले देखो, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, मैं उसका बात कर रहा हूं, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, देन यहां पे कितना होगा आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में कितना होगा। मेरा क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है, डोंट थिंक कन्वेंशनली। मैं आपको बस ये पूछ रहा हूं
कि आपको कितना एटीपी मिलेगा थ्रू सबस्ट्रेट लेवल, थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मैं और दूसरा कुछ नहीं पूछ रहा हूं कि कितना नेट गेन है। आई एम नॉट आस्किंग यू कितना नेट गेन है। दिमाग को थोड़ा समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल में आपको 4 मिलेगा, ऑक्सीडेटिव में आपको 6 मिलेगा। अंडरस्टूड? बात खत्म। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, जब ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहां पे आपको 0 ही मिलेगा, यहां से आपको 0 मिलेगा, राइट। एंड यहां पे चाहे ऑक्सीजन ना भी हो, ये भी आपको 4 मिलेगा। अंडरस्टूड? अब समझ में आ रहा है? I have not asked you the gain of ATP. Please try to understand. I'm not asking you how many ATP will you gain. अरे थोड़ा डिफरेंट वे में सोचो, यही तो प्रॉब्लम है। You never read the line because you are already, your mind is occupied. क्या हमको तो बचपन से यही आदत है कि कितना गेन है, यही हमको पढ़ाया गया। अरे मैं यहां पे नहीं पूछ रहा हूं कितना गेन है, मेरा क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट। प्लीज थिंक इन अ डिफरेंट वे। मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं कितना एटीपी मिलेगा थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, दैट्स इट। तो आपको इसको कंसीडर करने का जरूरत ही नहीं है। इसको कब आप कंसीडर करोगे? व्हेन यू टॉक अबाउट गेन, कितना हमको गेन मिला है। अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना? हाँ समझ गए सखी, अब सबका समझ में आया? ओके गुड। तो पाथवे आपको समझ में आ गया, पाथवे से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गया, राइट। ओके गुड। देखो, फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो चीज मैंने यहां पे लिख के लाया आपके लिए, देखो क्या लिख के लाया। मैंने कुछ ग्लाइकोलाइसिस का कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप को उठाया जहां से क्वेश्चन आएगा ऐसे, कुछ सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, एंजाइम एंड इनहिबिटर, like glucose to glucose 6 phosphate by hexokinase, and what will be the inhibitor, like that. See, glucose 6 phosphate, hexokinase, and inhibitor is glucose 6 phosphate. So what you understood here? Hexokinase glucose को glucose 6 phosphate में convert करेगा, same glucose 6 phosphate will again inhibit the same enzyme. So what is the nature of this inhibition? End product inhibition और feedback inhibition. इसका नेचर क्या है? एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन। अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट, सिमिलरली ऐसे आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे फॉर एन एग्जांपल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1 से 20 फॉस्फेट, यहां पे इनहिबिटर है एटीपी एंड साइट्रेट ऑल्सो, माइंड इट। साइट्रेट जो कि टीसी साइकिल का इंटरमीडिएट है, वो भी यहाँ पे आके फॉस्फोनल फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है पीएफ के, उसको इनहिबिट करेगा। एंड एटीपी इज ऑल्सो एन इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, रिमेंबर। एंड एटीपी इज एन इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एज वेल एज पायरुवेट काइनेज ऑल्सो, यहां पे भी है, ठीक है, यहां पे भी है, पायरुवेट काइनेज को भी इनहिबिट करेगा। बट द थिंग इज एटीपी विल इनहिबिट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज बाय एलोस्टेरिक इनहिबिटर, मतलब एटीपी इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर। ओके, अच्छा, एलोस्टेरिक इनहिबिटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ये है एंजाइम, ये है इसका सबस्ट्रेट, ठीक है, ये इसका सबस्ट्रेट। अब देखो इनहिबिटर क्या है? इनहिबिटर विल बाइंड समवेयर एल्स, मतलब इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इनहिबिटर विल नॉट टारगेट द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, इनहिबिटर कहीं और बाइंड करेगा। बट द थिंग इज, जैसे ही इनहिबिटर कोई और जगह पे बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट का जो ओरिजिनल बाइंडिंग है
दैट विल बी ग्रेटली अफेक्टेड। मतलब इनहिबिटर बाइंडिंग करने के बाद एंजाइम का जो स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन है दैट विल बी चेंज्ड सो दैट सबस्ट्रेट और बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो एलोस्टेरिक जो इनहिबिटर है, इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इनहिबिटर which may bind to anywhere of the enzyme other than substrate binding site। सबस्ट्रेट जहां बाइंड होता है वहां पे वो बाइंड नहीं करेगा, दूसरी किसी जगह बाइंड करेगा। बट ये इतना पावरफुल है कि दूसरी जगह बाइंड करने के बाद भी इसका इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है ताकि ओरिजिनल सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड ही नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? सो अगर ये जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रूक्टोकाइनेज, इसका सबस्ट्रेट कौन है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, तो इस एंजाइम का सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कौन है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जाके बाइंड करेगा। देन हाउ विल एटीपी इनहिबिट दैट एंजाइम? क्योंकि जहां पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाइंड करेगा वहां पे एटीपी बाइंड नहीं करेगा, एटीपी किसी दूसरे जगह बाइंड करेगा। अंडरस्टूड? बट इतना स्ट्रांग है इसका इफेक्ट कि एटीपी दूसरी जगह बाइंड करने के बाद भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? हम लोग देखेंगे कि कैसे ये चीज हो रहा है, हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। ओके नेक्स्ट, बाकी देखो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। फॉस्फोनल पायरुवेट टू पायरुवेट जो है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो कौन कौन इनहिबिट कर रहे हैं, एसिटाइल कोए, एलानिन, कैल्शियम, एटीपी, दे कैन ऑल इनहिबिट, दे कैन ऑल इनहिबिट। तो कौन सा एंजाइम का क्या इनहिबिटर है, यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि दे कैन आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन एमसीक्यू, इन एनी फॉर्मेट दे कैन आस्क यू। ओके नाउ देखो द थिंग इज, ये जो ग्लाइकोलिसिस का जो टोटल रिएक्शन है, टोटल रिएक्शन में कितना स्टेप है? 10 स्टेप। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल। 10 स्टेप है। अब 10 स्टेप में जो होता है यहाँ पे कौन कौन सा रेगुलेटरी एंजाइम है? व्हिच आर द रेगुलेटरी एंजाइम्स इन ग्लाइकोलिसिस? देयर आर 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स एंड ऑल 3 आर काइनेजेस, hexokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase. These 3 are the regulatory enzymes. Okay, so please remember these 3 are the regulatory enzymes. And the most important thing is, out of these 3 are the regulatory. Out of these 3, which one is the principal regulatory? Which one is the rate limiting step? Phosphofructokinase. This is रेट लिमिटिंग एंजाइम, मतलब स्लोएस्ट, एकदम स्लोएस्ट है। दिस इज स्लोएस्ट। अंडरस्टूड? दिस इज स्लोएस्ट। सो प्लीज रिमेंबर कि ये जो फॉस्फोफ्रूक्टोकाइनेज है दैट इज द स्लोएस्ट वन। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, देखो क्या लिखा है, रिएक्शन टाइप। रिएक्शन टाइप देखो, फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे आपको 10 स्टेप का ही पूरा कैलकुलेशन मिलेगा 1 से 10 तक। ये जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, राइट? तो देखो लिखा है फॉस्फोराइल ट्रांसफर, फॉस्फोराइल ट्रांसफर। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यू नो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर, राइट? हाँ कि नहीं? क्योंकि ग्लूकोज का भी C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी ग्लूकोज C6H12O6। Now what is the difference between glucose and fructose? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होगा फर्स्ट कार्बन पे, फ्रुक्टोज में कार्बोनिल ग्रुप होगा सेकंड कार्बन पे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। दिस इज सो बेसिक थिंग आई एम टेलिंग यू, दिस इज सो बेसिक। एनीवे, सो जब ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करो, बेसिकली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जब आप कन्वर्ट करोगे सेम मॉलिक्यूल, तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोथ आर आइसोमर। इसको क्या बोलेंगे? आइसोमराइजेशन, राइट? देखो आइसोमराइजेशन, मतलब जो सेकंड स्टेप है आइसोमराइजेशन। अगेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, मतलब और एक फॉस्फेट को ऐड होना है फर्स्ट कार्बन पे, राइट? सो अगेन फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर, राइट? अगेन फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर। अंडरस्टूड? देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट जैसे हो गया, वहां से आपको क्या मिलेगा? क्लीव होके डाइहाइड्रोक्सीन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एल्डोल क्लीवेज, राइट? समझ रहे हो? तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा स्टेप क्या रिएक्शन टाइप। अंडरस्टूड? अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं।
ये क्या है? देखो, हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इज नॉट ऑल अबाउट ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट इज नॉट ऑल अबाउट ग्लूकोज। जैसे मान लीजिए कि आप हनी खा रहे हो, हनी, या तो हनी में आपको फ्रुक्टोज मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा, राइट? तो सिमिलरली और भी डिफरेंट डिफरेंट सुगर्स है अदर देन ग्लूकोज। मतलब शुगर का मतलब ये नहीं है कि इट हैज टू बी ओनली ग्लूकोज। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? शुगर का मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग हैज टू बी ग्लूकोज। आपको फ्रुक्टोज भी मिल सकते हैं, आपको गैलेक्टोज भी मिल सकते हैं, मैनोज भी मिल सकते हैं, सुक्रोज भी मिल सकते हैं। दे आर ऑल इक्विवेलेंट, राइट? नाउ द थिंग इज, अब देखो, नाउ सो इफ यू आर टेकिंग अदर शुगर, अदर शुगर्स, where will they join the glycolysis? That is so important. देखो एक बार, तो ये आपका ग्लाइकोलिसिस का मेन स्टेम, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये है मेन स्टेम। अब देखो, अगर गैलेक्टोज कहां ज्वाइन करेगा? गैलेक्टोज ज्वाइन करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज? बोथ आर एपीमार। These are epimar at C4. Now what is epimar? जब दो स्ट्रक्चर एकदम सेम है, ये है ग्लूकोज, ये भी है गैलेक्टोज, दोनों। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट? यू हैव एनी डाउट? This is also structure of glucose. Any doubt? Doubt should not be there. Okay. अच्छा देखो, so यहां पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो ये जो मैं ये सब बेसिक चीज आपको समझना चाहिए। These are very 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 basic. Okay. Now what I'll do? I'll make one glucose, another galactose. अब देखो, तो ये जो ले है ना 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा? ऐसे H होगा, OH होगा, H होगा, OH होगा, H होगा, OH होगा, H होगा, OH होगा, मान लीजिए ऐसे कुछ होगा। ठीक, ऐसे कुछ होगा। तो मान लीजिए ए भी है, H OH H OH H OH OH एंड H। अब देखो, दो जो स्ट्रक्चर से एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट at fourth carbon, क्या देख रहे हो? फोर्थ कार्बन पे यहां पे H है, इधर OH है, इसका इधर OH है, इसका H है, और बाकी सब एवरीथिंग इज सेम। दैट मीन्स when two molecules will differ at a particular chiral carbon, I repeat the definition again, when two molecules will differ, जब दो मॉलिक्यूल का डिफरेंस आएगा at the level of one chiral carbon, they will become epimar. So glucose, galactose are epimar at C4. Similarly, glucose and mannose का नाम सुना? Glucose and mannose, they are epimars at C2. पढ़ो प्लीज, माय रिक्वेस्ट, पढ़ो। आप जितना पढ़ोगे उतना ही आप उतना जानोगे, उतना ही सीखोगे। ठीक है? सो देखो, मेरा ये अभी इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि दीज आर ऑल छोटा मोटा थिंग। आई एम श्योर यू कैन इजीली मैनेज ऑल दोस थिंग। नाउ कम टू द पॉइंट, यहां पे आओ। तो जब हम लोग गैलेक्टोज का बात करें, क्योंकि गैलेक्टोज इटसेल्फ इज C6 कंटेनिंग कंपाउंड, क्योंकि गैलेक्टोज ग्लूकोज बोथ आर C6H12O6। गैलेक्टोज इज ऑल्सो C6H12O6, क्योंकि ग्लूकोज गैलेक्टोज बोथ आर सेम, ओनली डिफरेंस एट C4। अंडरस्टूड? तो ग्लूकोज कहां ज्वाइन करेगा? गैलेक्टोज कहां ज्वाइन करेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। नाउ कम टू फ्रुक्टोज दो जगह ज्वाइन कर सकता है बेस्ड ऑन द टिश्यू लोकेशन। अगर इसका लोकेशन एडिपोज टिश्यू हुआ, देन फ्रुक्टोज विल ज्वाइन एज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब फ्रुक्टोज विल बी फॉस्फोरिलेटेड एंड इट विल ज्वाइन। और if the destination is liver, then it will join either in the form of DAP, means dihydroxyapatite phosphate, or in the form of glycerylate 3-phosphate, क्योंकि these two are, देखो, isomer, so
based on the tissue location, whether it is liver or adipose tissue, their joining will also differ. Understood? समझ रहे हो ना? समझ गया? ओके, गुड. सो प्लीज इसको याद रखो कि गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज का जो एंट्री है इन द ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस, दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट. ओके, नाउ अब तो शुरू होगा, अब शुरू होगा रेगुलेशन. अब शुरू होगा रेगुलेशन, क्योंकि अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे दैट वाज नोन टू यू, दैट वाज नोन टू यू. टाइटल क्या था? रेगुलेशन. रेगुलेशन के बारे में तो बताया ही नहीं, अभी होगा रेगुलेशन. अब देखो कि रेगुलेशन कैसे होगा. ठीक है, नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय रेगुलेशन. जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करते हैं, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मान लीजिए कि कोई अभी अभी राइस खाया, रोटी खाया, इडली, बड़ा, डोसा, व्हाटएवर अक्रॉस द कंट्री. तो आपको क्या लगता है कि आपने राइस खा लिया, रोटी खा लिया, मतलब आपका ग्लाइकोलिसिस शुरू हो जाएगा? हाँ? आपने राइस खाया, रोटी खाया, इसका मतलब क्या है? इमीडिएटली आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगा? नो. तो राइस खाया, रोटी खाया, मतलब क्या होगा? आपका डाइजेशन शुरू होगा, आपको ग्लूकोज मिलेगा. अब ग्लूकोज का क्या होगा? दैट डिपेंड्स ऑन योर फिजियोलॉजी. मतलब नहीं समझ रहे हो ना? आई रिपीट, आप चाहे रोटी खाओ, राइस खाओ, इडली, वड़ा, डोसा, व्हाटएवर, आपको ग्लूकोज तो मिल जाएगा, दैट फॉर श्योर. ग्लूकोज आपको मिल जाएगा. बट ग्लूकोज मिलने के बाद क्या होगा? क्या आपका ग्लाइकोलिसिस शुरू हो जाएगा या ग्लूकोज का कोई और दूसरा लेवल पे कन्वर्सन होगा? दैट विल डिपेंड ऑन योर फिजियोलॉजी. लेट मी गिव एन एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड. मान लीजिए कि कोई है जो कि बहुत काम कर रहे हैं, मतलब यू आर फिजियोलॉजिकली सो एक्टिव. हो सकता है कि आप खेल रहे हो, यू आर एथलीट, और ले सकते हो सकता है कि मान लीजिए कि आप बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो. ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो. तो जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो या तो आप एथलीट हो, देयर इज ए ह्यूज डिमांड ऑफ एनर्जी. आपको एनर्जी चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए. तो आपको जब एनर्जी चाहिए, उसी स्टेट में आपने खाना खाया, तो ऑब्वियसली जो ग्लूकोज आपको मिलेगा, दैट ग्लूकोज विल इमीडिएटली स्टार्ट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस. अंडरस्टूड? नाउ थिंक इन अ डिफरेंट वे. कोई काम नहीं कर रहे, बिल्कुल सुबह उठ के बिंदास मोबाइल ब्राउज कर रहे हैं. ठीक है, मतलब उसका एनर्जी का जरूरत बहुत कम है, एनर्जी का जरूरत बहुत कम है, बट वो भी खाना खाया, वो भी उतना ही बड़ा सब कुछ खा लिया, तो उसको ग्लूकोज तो मिल जाएगा. बट सिंस एनर्जी डिमांड कम है, तो ग्लूकोज स्टोर्ड रह जाएगा. मतलब ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन. ऐसा नहीं कि ग्लूकोज का डिमांड है, मतलब एनर्जी का डिमांड है, तो ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोलिसिस. नो. समझ रहे हो? यहां पे आपको एक चीज समझना चाहिए, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज विल स्टार्ट ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगा. अगर आपको एनर्जी नहीं चाहिए तो ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन सिंपली. अभी आपको नहीं चाहिए तो ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन. अंडरस्टूड द बेसिक थिंग? दैट मीन्स ग्लूकोज आपको मिलेगा चाहे बड़ा हो या इडली हो, बट ग्लूकोज का नेक्स्ट फेट क्या होगा? That depends on your physiology. Understood? Okay. This is one aspect. This is one aspect. There is one more huge aspect. जो आपने कभी सोचा ही नहीं, वही चीज मैं आपको बोलने आ रहा हूं अभी. वो क्या है? आप लोग बाय डिफॉल्ट ऐसे सोच लेते हो कि मान लीजिए देयर इज ए ह्यूज डिमांड ऑफ एनर्जी, मेरा एनर्जी का जरूरत है, तो ग्लूकोज मैंने खा लिया, मतलब खाना खा लिया, तो मेरा ग्लूकोज वो आ गया डाइजेशन से, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से हमको ग्लूकोज मिल गया, तो ग्लाइकोलिसिस शुरू हो जाएगा. राइट? क्योंकि इफ यू बिलीव दैट देयर इज ए डिमांड ऑफ एनर्जी, आप ऐसे सोचते हो कि इफ देयर इज ए डिमांड ऑफ एनर्जी सो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस विल स्टार्ट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 1 मिनट पहले. राइट? बट यहां पे एक बहुत बड़ा कंडीशन अप्लाई है. क्या है वो कंडीशन अप्लाई? आपको एक चीज समझना होगा कि पूरा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको एंजाइम चाहिए, 10 एंजाइम चाहिए.
10 स्टेप होगा तो 10 एंजाइम चाहिए। आपको अगर ग्लाइकोलिसिस शुरू करना है तो आपको हर एक एंजाइम का कंसेंट्रेशन ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि हेक्सोकाइनेज या तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज या तो पायरुवेट काइनेज, जो कि प्रिंसिपल रेगुलेटरी एंजाइम्स है, सिर्फ ये तीनों ही नहीं बाकी सबका, ये सब जो एंजाइम है इसका कंसेंट्रेशन हाई लेवल पे होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आप खाना खा रहे हो, मतलब आप ग्लूकोज आपको मिल जाएगा फ्रॉम योर डाइट, यू विल गेट ग्लूकोज फ्रॉम योर डाइट, क्योंकि आप खाना खा रहे हो तो यू विल गेट ग्लूकोज, दैट्स नॉट एन इशू। बट माई क्वेश्चन इज, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्सन है उसके लिए यू नीड हेक्सोकाइनेज। So my question is, from where you will get hexokinase? हेक्सोकाइनेज कहां से मिलेगा आपको? उसके बाद फॉस्फोएक्सो आइसोमेरेज कहां से मिलेगा? उसके बाद फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कहां से मिलेगा? आपको क्या लगता है सेल में हमेशा हर एक एंजाइम एकदम हर एक हायर कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है, मौजूद है? अंडरस्टूड? So how will you get this enzyme? एंजाइम कहां से मिलेगा? एंजाइम मिलेगा थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। व्हाट इज दैट जीन एक्सप्रेशन? मान लीजिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम, मैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम का मैं बात कर रहा हूं। हेक्सोकाइनेज जीन है, यहां से आपको मिलेगा हेक्सोकाइनेज एमआरएनए, यहां से मिलेगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अंडरस्टूड? हर एक एंजाइम हर एक प्रोटीन आपको कहां से मिलेगा? जीन एक्सप्रेशन से। नाउ द क्वेश्चन इज, आपका ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि आप बड़ा खाया, आप इडली खाया, डोसा खाया, ग्लूकोज आपको मिल गया, तो आपको ग्लाइकोलाइसिस की जरूरत है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस की जरूरत है क्योंकि आपने खाना खाया, तो सेल को कहां से पता चलेगा कि आपको ग्लाइकोलाइसिस शुरू करना है? तो हेक्सोकाइनेज का लेवल भी हाई रखना है हमको, मतलब देयर शुड बी अ जीन एक्सप्रेशन ऑफ हेक्सोकाइनेज, देयर शुड बी अ जीन एक्सप्रेशन ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, देयर शुड बी जीन एक्सप्रेशन ऑफ पायरुवेट काइनेज, इनफैक्ट ऑल अदर एंजाइम्स, देयर शुड बी जीन एक्सप्रेशन ऑफ दोस एंजाइम्स, so that you will get gene to mRNA to enzyme. Who will make sure that? Who will maintain that? Insulin. Correct. Who is that person? Sritapa Mandal. Correct. Insulin. Now come to the physiology. Come to the physiology. मैं आपको क्या बताया? आपको ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा या ग्लूकोज का चैनलाइजेशन होगा? Who will decide it? Who will decide? अच्छा, इससे पहले आओ, सेल में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया, Who will sense it? सेंसर किसके पास है? सेंसर। Who will sense कि ग्लूकोज लेवल एक्सीड कर गया, एवरेज जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल लेवल है उससे एक्सीड कर गया, Who will sense it? इंसुलिन विल सेंस इट। जैसे ही इंसुलिन सेंस करेगा कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, इमीडिएटली इंसुलिन विल बाइंड टू इंसुलिन रिसेप्टर। अब जैसे इंसुलिन विल बाइंड टू इंसुलिन रिसेप्टर विल बिकम एक्टिवेटेड। जैसे इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, वो डाउनस्ट्रीम में बहुत सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है, उसको फर्दर सब्सिक्वेंट एक्टिवेशन करते जाएगा। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? जीन एक्सप्रेशन। इसका जीन एक्सप्रेशन हेक्सोकाइनेज का, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का, पायरुवेट काइनेज का, क्योंकि इंसुलिन विल फील कि अगर हमको ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है तो ग्लूकोज शुड बी यूटिलाइज्ड एज मच एज पॉसिबल। तो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के लिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस शुड बी एक्टिवेटेड। फॉर दैट all the enzymes which are involved in glycolysis should remain in higher concentration. इसीलिए पूरा सेल सिग्नलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगा जीन एक्सप्रेशन के लिए। अंडरस्टूड हाउ इट हैपेंस? नाउ यू अंडरस्टूड? तो पूरा प्रोसेस में
आपको किसका किसका रोल मिल रहा है? एक तो है हार्मोन का रोल, एक हार्मोनल सिग्नलिंग. हार्मोनल सिग्नलिंग विल लीड टू जीन एक्सप्रेशन. अंडरस्टूड? ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि हार्मोन विल कैरी द सिग्नल, हार्मोन विल ब्रिंग द सिग्नल. व्हाट इज दैट सिग्नल? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल. दैट इज द सिग्नल. दैट इज द सिग्नल कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया. दैट इज द सिग्नल. अंडरस्टूड? अब समझ में आया सबको? राइट? ओके. सो ग्लाइकोलाइसिस शुरू करने के लिए आपको सिर्फ बड़ा और इडली खाने से नहीं होगा. हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफिटोकाइनेज का लेवल भी हायर रखना है, तभी जाके ग्लाइकोलाइसिस शुरू होगा. ऐसे नहीं कि मैं ग्लूकोज खा रहा हूं मतलब मेरा ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाएगा. अंडरस्टूड नाउ? ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई ऑफ ग्लूकोज एट द सेम टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द एंजाइम्स. क्योंकि अगर एंजाइम अवेलेबल नहीं है, चाहे कितना भी सबस्ट्रेट यहां पे मौजूद है, चाहे कितना भी ग्लूकोज आ गया आपका, अगर एंजाइम अवेलेबल नहीं है, देन प्रोसेस विल नॉट बी चैनलाइज्ड. दैट इज द होल फिजियोलॉजी. अंडरस्टूड? देखो, बायोलॉजी को आपको समझना है. यू शुड अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट ईच एंड एवरीथिंग, देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन. अंडरस्टूड? ओके. सो फर्स्ट आई विल टेल यू द रोल ऑफ फैक्टर्स, देन आई विल टेल यू द रोल ऑफ एंजाइम्स. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद फैक्टर्स फर्स्ट. देखो, ये जो हेक्सोकाइनेज, मैं तब से बोल रहा हूं हेक्सोकाइनेज क्योंकि फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज का एक सिमिलर टाइप ऑफ एंजाइम है जिसका नाम है ग्लूकोकाइनेज. अब देखो, टिश्यू स्पेसिफिक लोकेशन से एंजाइम भी चेंज हो जाएगा. मतलब ग्लूकोकाइनेज मिलेगा आपको ओनली इन लिवर. तो ग्लूकोकाइनेज क्या करेगा? ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. दैट्स इट. So glucose to glucose 6 phosphate conversion will be done by either hexokinase or glucokinase, but it depends on tissue. अगर मैं लिवर का बात कर रहा हूं, मतलब लिवर ग्लाइकोलाइसिस, it will be started with glucokinase, then तो बाकी जो एंजाइम है जैसे होगा ऐसे ही. But anything other than liver means muscle, kidney, any other tissues, the biggest player is of course muscle. तो मसल में आपको हेक्सोकाइनेज मिलेगा, मसल में मिलेगा हेक्सोकाइनेज, लिवर में मिलेगा ग्लूकोकाइनेज. नाउ सिंस आई ऑलरेडी टॉट यू एंजाइम काइनेटिक्स, नाउ कम टू द पॉइंट. अब देखो इसका केएम वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है. लुक एट द डिफरेंस ऑफ देयर केएम वैल्यूज. अ वैल्यू व्हिच डिफाइंस द सबस्ट्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स एन एंजाइम. सी द डिफरेंस. हेक्सोकाइनेज मान लीजिए ए है इसका Vmax, ठीक है, तो ये होगा Vmax. तो यहां पे आएगा इसका केएम. किसका केएम है? हेक्सोकाइनेज. अच्छा, ग्लूकोकाइनेज, इसको थोड़ा एक्सटेंड करने से मान लीजिए यहां पे अटैच हो जाएगा, मतलब टच कर जाएगा. ये भी 150. देखो, ये उसका केएम. समझ रहे हो? क्या समझ में आया अभी आपको? कौन सा एंजाइम फास्टर काम करेगा? हेक्सोकाइनेज. तो मसल में जो हेक्सोकाइनेज है, इनफैक्ट ऑल अदर टिश्यूज अदर देन लिवर, वहां पे हेक्सोकाइनेज का जो एक्टिविटी है दैट विल बी सुपर फास्ट. मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस विल बी सुपर फास्ट कंपेयर टू लिवर ग्लाइकोलाइसिस. तो अगर आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि व्हाई इट हैपेंस कि मसल ग्लाइकोलाइसिस इज मच फास्टर देन द लिवर ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? योर एक्चुअल रीजन विल बी हेक्सोकाइनेज वर्सेस ग्लूकोकाइनेज. अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना? Okay. How insulin will predict whether to convert? That is the thing I'm telling you. How insulin means what? It will sense. You know the meaning of sensor? How it senses? Let's say smoke detector. If there is any presence of smoke, that will detect. Sensing system. ठीक है? तो जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा, इंसुलिन विल सेंस इट. जैसे इंसुलिन सेंस करेगा. हार्मोन का काम क्या है? हाउ डज हार्मोन एक्ट? टेल मी. हार्मोन कैसे काम करेगा? हार्मोन विल ऑलवेज बाइंड टू द रिसेप्टर. नाउ आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो कि ग्लूकोज का लेवल कम करना है, कैसे कम करेंगे? देयर आर सो मेनी वेज. ऐसा नहीं कि ओनली ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करना. इफ आई स्टार्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, देन द होल प्रोसेस विल बी डिस्ट्रैक्टेड.
बट ओके चलो, जैसे सिंस यू आस्क द क्वेश्चन सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. मान लीजिए यहां पे आपका ग्लूकोज थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, यहां पे थोड़ा ग्लूकोज ज्यादा हो गया. ग्लूकोज लेवल कम करना है, आप कैसे कैसे कर सकते हो? एक तो है ग्लाइकोलाइसिस को ऑन करो, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस विल बी एक्टिवेटेड. दूसरा क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस, इसको भी ऑन करो, मतलब एक्टिवेट करो ग्लाइकोजेनेसिस. नेक्स्ट क्या कर सकते हो? ग्लूकोज को आप आउट ऑफ सेल एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है. अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर आर सम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. आप शायद नाम सुना होगा, ग्लूट, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ऐसे ऐसे है. बेस्ड ऑन different tissues, there are different the transporters. So what will insulin do? Insulin will express the level of GLUT1, level of GLUT2 based on different tissue locations. Okay, so जब इसका नंबर ज्यादा हो जाएगा then ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज will be out of the cell. Understood? तो बेसिकली ग्लूकोज का लेवल कम करना है. कैसे कम करोगे? या तो ग्लाइकोलाइसिस ऑन कर दो, या तो ग्लाइकोजेनेसिस ऑन कर दो, या तो ग्लूकोज को एक्सपोर्ट कर दो, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट. इट इज कॉल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल. सो बाय एनी वे ग्लूकोज लेवल शुड बी कंट्रोल. बट एट द सेम टाइम ये जो सब प्रोसेस है यहां पे, इसको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड आप रेगुलेशन. दिस इज कॉल्ड आप रेगुलेशन. This is called up regulation. This is also called up regulation. This is called up regulation. This is also called up regulation. Up regulation of GLUT transporter. अब यहां पे इंसुलिन को डाउन रेगुलेशन भी करना है. इसका डाउन रेगुलेशन करना है. देखो, देयर इज अ प्रोसेस जिसका नाम है ग्लाइकोजेनोलाइसिस. What do you mean by glycogenolysis? Breakdown of glycogen. So, ग्लूकोज को आप प्रमोट कर रहे हो ग्लूकोज का पॉलीमर फॉर्मेशन में. तो अगर आप ग्लूकोज को पॉलीमर फॉर्मेशन में ज्यादा एनकरेज कर दोगे, ज्यादा एक्टिवेट करोगे, इवेंचुअली ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा. फाइन. बट देयर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस में क्या होगा? ग्लाइकोज विल बी ब्रोकन, अगेन आपको ग्लूकोज मिल जाएगा. तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करने के लिए जो जो एंजाइम चाहिए, जैसे मेजर एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनएक्टिवेट करना है. अंडरस्टूड? ये सब प्रोसेस को आप एक्टिवेट कर रहे हो, इसको इनएक्टिवेट करना है. तो इसको क्या करना है? डाउन रेगुलेट. अंडरस्टूड? डाउन रेगुलेट करना है. नाउ देयर इज वन मोर स्टेप. Let's say gluconeogenesis. Gluconeogenesis का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस. दैट्स इट. तो ग्लूकोनेोजेनेसिस जो कि फिर ग्लूकोज को ग्लूकोज में वापस लाएगा, वहां पे भी जो जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका भी डाउन रेगुलेट करना है. अंडरस्टूड? उसका भी सेम वे यहां पे भी उसको डाउन रेगुलेट करना है. दिस इज द वे हाउ इंसुलिन डज एवरीथिंग. That's why insulin is so important to us. Now you understood? समझ रहे हो? अभी समझ में आ गया? Now इतना कुछ होने के बाद भी आप देखो कि there are another group of patient जिसका डायबिटिक्स होता है कि इंसुलिन तो है फिर भी डायबिटीज है. उसके पीछे दूसरा रीजन है कि इंसुलिन है फिर भी काम नहीं कर रहे. क्यों? ऐसा क्यों है कि इंसुलिन है फिर भी काम नहीं कर रहे? इसके पीछे दो रीजन हो सकता है. इसका पीछे दो रीजन हो सकता है. क्या? इंसुलिन का जो इतना काम है, ये काम कैसे होता है? इंसुलिन बस क्या करता है? इंसुलिन इज लाइक अ मैनेजर, बॉस. पूरा टास्क को किसको हैंड ओवर कर देते हैं? इंसुलिन रिसेप्टर को. मतलब जितना सारा एक्सप्रेशन का काम है, जीन एक्सप्रेशन, उसका सिग्नल कहां से आता है? रिसेप्टर से.
तो मान लीजिए कि इंसुलिन इज सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम विद इंसुलिन, बट इंसुलिन रिसेप्टर्स आर लेस, देन क्या होगा? इंसुलिन बाइंड ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कितना डिफिकल्ट, एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी, इट इज सो डिफिकल्ट। तो सिंपली ऐसा नहीं है कि सिंपली इंसुलिन होने से ही हो जाएगा सब कुछ, नो, इंसुलिन रिसेप्टर भी होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए कि इंसुलिन रिसेप्टर है फिर भी इंसुलिन काम नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंसुलिन का जो बाइंडिंग साइट है, जहां पे बाइंड करेगा, वहां पे कुछ म्यूटेशन हो गया, वहां पे बाइंडिंग एफिनिटी कुछ चेंज हो गया। मतलब आपका इंसुलिन भी है, रिसेप्टर भी है, बट रिसेप्टर में जहां पे इंसुलिन बाइंड करता है, जो बाइंडिंग साइट है, वहां पे प्रॉब्लम है। देन क्या होगा? दोनों प्रेजेंट है फिर भी काम नहीं करेगा। अंडरस्टूड? समझ रहे हो आप? तो यू आर ऑल बर्डिंग साइंटिस्ट, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द biological process, so many, समझ रहे हो ना? So I am sure many of you are encouraged to become a budding scientist, ठीक है। So आप देखो ये सब आइडिया आपको तभी आएगा if you study more, if you study more, if you study many things, you can connect the dots and you can find some solution, understood? So for that biology आपको पढ़ना है, एकदम पूरा दिन भर आपको पढ़ना है। आप जितना पढ़ोगे you can bring the idea, understood? Anyway, चलो मैं कहां पे बात कर रहा था? यहां पे बात कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि द डिफरेंस बिटवीन हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। एंड क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया कि व्हाई डज मसल ग्लाइकोलाइसिस एक्ट्स फास्टर कंपेयर टू लिवर ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज द आंसर कि हेक्सोकाइनेज का जो केएम है दैट इज सो लेस, टू लेस कंपेयर टू ग्लूकोकाइनेज, उसका केएम इज काफी हाई। समझ गया? ओके, नेक्स्ट देखो, हम लोग जब माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पढ़ रहा था, माइकलिस मेंटेन जो इक्वेशन पढ़ रहा था, वहां पे क्या था? वहां पे था ऐसे, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन वर्सेस भी, राइट, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन वर्सेस भी, एंड वहां पे ये ऐसे करके जा रहा था, राइट, ऐसे करके जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे थे, एंड व्हाट अबाउट एंजाइम कंसेंट्रेशन? एंजाइम कंसेंट्रेशन वाज फिक्स्ड। मतलब do you remember this? Do you remember dt equals to 0? That means enzyme concentration was fixed. That was the assumption regarding Michaelis-Menten equation. अब यहां पे जैसे मैंने एंजाइम का फंडा अभी आपको बता दिया कि ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट ऑल अबाउट हमको कितना ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस विल आल्सो डिपेंड ऑन कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम आपके पास है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि ग्लूकोज आ गया चलो मेरा ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाएगा, नो। सो यहां पे अगर थ्रू जीन एक्सप्रेशन एंजाइम का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं, देन द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विल बी ऑलवेज हायर। तो यहां पे ये क्या है? दिस इज ई वर्सेस वी, दिस इज नॉट एस वर्सेस बी, माइंड इट। ये था एस वर्सेस बी, दिस इज ई वर्सेस बी। समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि सर यहां पे कैसे ऐसे हो रहे, दिस इज, वी आर नॉट कंसिडरिंग सबस्ट्रेट हियर, वी आर कंसिडरिंग एंजाइम हियर, अंडरस्टूड? So if it is E versus B, the reaction will always be higher. Okay? नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, यहां पे एक बार देख लो कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल कौन किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, कौन किसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है? एक बार देखो। तो यहां पे बेसिकली जो मेजर एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफुटोकाइनेज एंड पाइरुवेट काइनेज, ठीक है? अब पहले हेक्सोकाइनेज से बात करो। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इट इज फीडबैक मैकेनिज्म, राइट? ओके। नेक्स्ट फॉस्फोफुटोकाइनेज
Phosphofructokinase will be inhibited by ATP and citrate. ATP and citrate. Okay. Next, phosphofructokinase will be activated by AMP or fructose 2,6 bisphosphate. अच्छा, यहां पे फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट क्या है, क्योंकि इसका नाम तो मैंने लिया नहीं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में. देखो, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का नाम सुना. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट होता है, पहले 6 फॉस्फेट मतलब क्या, ऑलरेडी 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट है. यहां पे जो सेकेंड फॉस्फेट ऐड होगा, दैट विल बी इनिशियली दैट विल बी ऑन फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट. देन जो सेकेंड कार्बन में था, दैट विल बी शिफ्टेड टू फर्स्ट कार्बन. अंडरस्टूड? आई रिपीट अगेन. आप जानते हो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट होता है. दिस इज व्हाट यू नो, राइट? तो 6 फॉस्फेट मतलब क्या, 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट है. यहां पे एक सेकेंड कार्बन, यहां पे एक सेकेंड फॉस्फेट आएगा. तो सेकेंड फॉस्फेट पहले आता है सेकेंड कार्बन पे, देन दैट फॉस्फेट विल बी शिफ्टेड टू फर्स्ट कार्बन, so it will become fructose 1,6 bisphosphate. तो ये जो fructose 2,6 bisphosphate है, that is basically an intermediate of fructose 1,6 bisphosphate formation. Understood? So please keep in your mind कि fructose 2,6 bisphosphate जो है, that is in between fructose 6 phosphate and fructose 1,6 bisphosphate. And कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? सेम एंजाइम, PFK काइनेज, सेम PFK, सेम एंजाइम. ठीक है, सेम एंजाइम विल डू इट. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट. So now the thing is, phosphofructokinase will be inhibited by ATP or citrate, and it will be activated by AMP or fructose 2,6 bisphosphate. Okay. Now come to the last, pyruvate kinase. I told you pyruvate kinase will be inhibited by ATP, but it will be activated by fructose 1,6 bisphosphate. मतलब ये जो fructose 1,6 bisphosphate है, this will activate pyruvate kinase. But ये जो fructose 2,6 bisphosphate है, this will activate phosphofructokinase. Understood? I repeat again. Fructose 1,6 bisphosphate जो है, that will activate pyruvate kinase. But जो intermediate है, since the intermediate is their own product, so that will activate phosphofructokinase. ठीक है? Now I'm sure you will not forget it. Okay. Now देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताऊंगा. ये चीज समझने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, so that you will understand, you can correlate. मान लीजिए कि आप डेस्कटॉप में वीडियो गेम खेल रहे हो. ठीक है, मान लीजिए कि आप डेस्कटॉप में वीडियो गेम खेल रहे हो. आपका पापा ऑफिस से लौट के आया, मामी को पूछ रहे कि ये बेटा पढ़ रहे हैं ना. तो मान लीजिए कि तब आप सुन लिया कि हाँ, आपको पूछ रहे, मतलब मामी को पूछ रहे आपका पापा कि वो पढ़ रहे कि नहीं. तो आप तो वीडियो गेम खेल रहे थे. तो आपके पास कितना तरीका है उसको छुपाने के लिए, कितना तरीका है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो वीडियो गेम कभी खेलता भी नहीं हूँ, तो आई डोंट नो हाउ टू एग्जिट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, तो हो सकता है कि आप पहले गेम से एग्जिट करोगे, देन फिर भी हो सकता है कि गेम का जो बैकग्राउंड है वो भी रहेगा, तो उसको भी क्लोज करना है, राइट? सो इट विल टेक सम टाइम. मान लीजिए कि ये सब ना करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप ना करके, मान लीजिए वहां पे राइट साइड में कोई क्रॉस बटन है, वहां पे डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो पूरा वीडियो गेम स्टॉप हो जाएगा. ये भी एक तरीका है. मान लीजिए कि ये सब ना करके आप जो पावर बटन है, पावर बटन दबा दो तो डेस्कटॉप बंद हो जाएगा. सो बेसिकली जो आप वीडियो गेम खेल रहे थे, यहां से छुपने के लिए 2-3 तरीका है, एंड 2-3 तरीका से डिफरेंट टाइम रिक्वायरमेंट होगा. अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो यू विल टेक मैक्सिमम टाइम, आई मीन सम टाइम आपको लगेगा. अगर आप पावर बटन को दबाओगे तो इट विल बी ऑफ सिंपली विद इन ए सेकंड. समझ रहे हो? तो आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि वीडियो गेम जो चल रहे हैं इसको बंद करना है. आप कैसे करोगे
या तो पावर बटन दबा सकते हो, या तो ओनली राइट साइड में जो क्लोज ऑप्शन है उसको दबा सकते हो, या तो आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। मतलब देयर आर मेनी वेज यू कैन स्टॉप द वीडियो गेम, अंडरस्टूड? बट in every different step the time requirement will be different. Now coming to the point, so exactly मान लीजिए कि आपको ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, उसको स्टॉप करना है, या तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को शुरू करना है, अंडरस्टूड? आपको या तो शुरू करना है या तो आपको स्टॉप करना है, बेसिकली आपको रेगुलेट करना है। रेगुलेशन का मतलब क्या है? रेगुलेशन मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ। रेगुलेटर, अभी गर्मी का टाइम आ गया, रेगुलेटर मतलब क्या? यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो, यू कैन डिक्रीज द स्पीड ऑल्सो। रेगुलेशन का मतलब ऐसे नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, बोथ। रेगुलेटर मतलब बोथ। सो मान लीजिए कि आप ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करोगे, कैसे करोगे? देखो, देयर आर मेनी वेज। नंबर 1, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, मतलब कुछ एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल है, फॉर एन एग्जांपल एटीपी। अगर एटीपी बाइंड किया फॉस्फोफोटोकाइनेज से, तो फॉस्फोफोटोकाइनेज का जो एक्टिविटी है दैट विल बी स्टॉप्ड। कितना टाइम लगेगा? मिली सेकेंड। मिली सेकेंड, इतना इफेक्टिव है। अब देखो फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन क्या है? अब देखोगे देयर आर सो मेनी सेल सिग्नलिंग में, पर्टिकुलरली सेल सिग्नलिंग में आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोटीन है जो कि फॉस्फोरिलेशन से उसके एक्टिविटी आता है, या तो फॉस्फोरिलेशन से एक्टिविटी चला जाता है। मतलब इट कैन बी वाइस वर्सा। फॉस्फोरिलेशन में एक्टिविटी आ गया मतलब प्रोटीन विल बी एक्टिवेटेड, डीफॉस्फोरिलेशन में इट विल बी डीएक्टिवेटेड, या तो ऑपोजिट कैन आल्सो बी ट्रू कि फॉस्फोरिलेशन में दैट विल बी डीएक्टिवेटेड एंड डीफॉस्फोरिलेशन में इट विल बी एक्टिवेटेड। सो फॉस्फोरिलेशन मींस कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन से भी आप किसी प्रोटीन या तो किसी एंजाइम का फंक्शन आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो, अंडरस्टूड? तो बेसिकली आपको क्या करना है? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को रेगुलेट करना है। इसका मतलब क्या है? ये जो एंजाइम है, एंजाइम को रेगुलेट करना है। एंजाइम को अगर आप एक्टिवेट कर दिया तो प्रोसेस विल बी ऑन, एंजाइम को अगर आप डीएक्टिवेट कर दिया तो प्रोसेस विल बी ऑफ। यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस? कैसे रेगुलेट करोगे? यू हैव टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंजाइम। अगर एंजाइम का फंक्शन आप अपग्रेड कर रहे हो तो इट विल बी ऑन, अगर उसको इनहिबिट कर रहे हो तो इट विल बी ऑफ, अंडरस्टूड? So you can do it by allosteric mechanism also, but that will take very less time. मतलब इतना क्विक रेस्पॉन्स है एंड सुपर फास्ट रेस्पॉन्स which will be made only in millisecond. But phosphorylation जैसा इवेंट will take some seconds. It will take some seconds. Now come to transcription, मतलब जो कि जीन एक्सप्रेशन का मैं बात कर रहा था। ट्रांसक्रिप्शन मतलब जीन एक्सप्रेशन, आपको एमआरएनए मिलेगा तो आपको प्रोटीन में मिलेगा। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन से जब जीन एक्सप्रेशन हो रहा है वो कितना टाइम लगाएगा? आवर्स लगाएगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विल टेक मोर टाइम, क्योंकि सिंपली ट्रांसक्रिप्शन से तो आपको एंजाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से आपको एमआरएनए मिलेगा, एंजाइम के एमआरएनए मिलेगा, उसको फिर ट्रांसलेट भी होना है, अंडरस्टूड? इसीलिए अगर जीन एक्सप्रेशन का मोड पे जा रहे हो दैट विल टेक मैक्सिमम टाइम। सो व्हाट यू अंडरस्टूड? अगर आपको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस सडन कंट्रोल करना है, सडन एक्टिवेट करना है या तो सडन डीएक्टिवेट करना है, तो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे? यूजिंग एलोस्टेरिक मैकेनिज्म, अंडरस्टूड? एंड व्हाट विल बी द स्लोएस्ट वे? बाय जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन विल टेक टाइम, अंडरस्टूड? समझ गया अभी? राइट? नाउ देखो, नाउ विल डिस्कस अबाउट एंजाइम्स। हर एक एंजाइम का क्या रोल है एंड हर एक एंजाइम का कैसे रेगुलेट होता है। मैं अभी क्या बात कर रहा था कि आप ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करोगे। कैसे रेगुलेट करोगे? आपको जो एंजाइम है, ग्लाइकोलिसिस का जो एंजाइम है उसको रेगुलेट करना है। तो इफ यू कैन रेगुलेट द एंजाइम, इवेंचुअली ग्लाइकोलिसिस विल आल्सो बी रेगुलेटेड। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का जो एंजाइम है इसको कैसे हम लोग रेगुलेट करेंगे। लेट अस सी। फर्स्ट, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज, ये जो है दैट रेगुलेशन विल ऑकर एट द लेवल ऑफ टिश्यू। यहां पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते,
इट इज टिश्यू स्पेसिफिक रेगुलेशन। लीवर में होगा तो ग्लूकोकाइनेज से रेगुलेट होगा, अदर देन लीवर होगा तो हेक्सोकाइनेज से रेगुलेट होगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल एंड इन दिस वे इट विल बी रेगुलेटेड। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ऐसे बोलोगे कि सर व्हाई इज इट सो, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन बट नोबडी इज आस्क्ड मी। देखो, इट इज बिकॉज लीवर में ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट है, hexokinase is absent in liver. Understood? Similarly, other than liver, like muscle, kidney, anywhere, वहां पे hexokinase present है, glucokinase absent है. You know there is something called marker. I'm not talking about DNA marker. Simply enzyme marker. You know enzyme marker मतलब क्या? हर एक टिश्यू का कुछ यूनिक एंजाइम होता है जो कि उसी टिश्यू में आपको मिलेगा, दूसरे जगह पे नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? सो फॉर एन एग्जांपल लिवर, किडनी, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन वहीं पे होता है, तो जो पर्टिकुलर फंक्शन वहां पे होगा वो फंक्शन दूसरे टिश्यू में नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली वो जो एंजाइम है उसका लेवल चेक किया जाता है। जब पैथोलॉजिकल डिटेक्शन होगा वहां पे उस एंजाइम का लेवल चेक किया जाता है कि हाँ ये लेवल यहाँ पे कम है या ज्यादा है। बेस्ड ऑन दैट वन कैन से लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड मार्कर एंजाइम। These are extremely specific to particular tissue. Understood? So, based on that, you will say जो जहां पे प्रेजेंट है उसका एक्टिविटी आपको वहीं पे मिलेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एंजाइम 2। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो, तो अब तक एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि ग्लाइकोलिसिस से हम लोग को एटीपी मिलता है। तो अगर एटीपी का कंसेंट्रेशन हाई है, अगर एटीपी कंसेंट्रेशन हाई है, देयर शुड नॉट बी एनी फर्दर ग्लाइकोलिसिस। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, राइट? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से एटीपी हमको मिलेगा। तो अगर सेल में ऑलरेडी एटीपी का लेवल हाई है, योर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस विल नेवर बी एक्टिवेटेड, इट विल बी स्टॉप्ड। अब देखो कैसे होता है। तो हम लोग किसका बात करेंगे? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। पहले एक बार देख लो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्चुअली क्या करेगा। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा इसको, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एंड हु विल मेक इट? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम विल कन्वर्ट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो व्हाट इज दिस? दिस इज सबस्ट्रेट। दिस इज सबस्ट्रेट। अब देखो, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज द सबस्ट्रेट। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? एस वर्सेस बी, जो कि माइकलिस मेंटेन में हम लोग स्टडी करते हैं, एस वर्सेस बी। अब देखो यहां पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट मिलेगा। रिएक्शन में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन पे कहीं पर भी एटीपी का कोई रोल ही नहीं है। मतलब एटीपी इज अ थर्ड पर्सन हियर, एटीपी इज अ थर्ड पर्सन। इस कन्वर्सन में एटीपी का कोई रोल भी नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। अंडरस्टूड? अब वी विल से बीइंग अ थर्ड पर्सन, हाउ मच एटीपी इन्फ्लुएंस दिस रिएक्शन। अब देखो जब एटीपी हाई है, जब एटीपी हाई होगा, रिएक्शन विल बिकम सिग्मोइडल। जब एटीपी लो है, रिएक्शन विल बिकम हाइपरबोलिक। अंडरस्टूड? नाउ लुक, तो दोनों का आप देखोगे Vmax सेम ही होगा, यहां पे होगा Vmax, राइट? ये भी यहां पे टच कर जाएगा तो Vmax होगा इतना। तो ये मान लीजिए कि हाफ Vmax है, तो ये है इसका केम, ये है इसका केम। तो आप क्या देख रहे हो? एंजाइम तो एक ही है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, बट
बीइंग अ थर्ड पर्सन व्हिच इज एटीपी, एटीपी यहां पे थर्ड पर्सन है जिसका प्रेजेंस और एब्सेंस में केम का लेवल चेंज हो रहा है, केम का लेवल चेंज हो रहा है इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एटीपी व्हिच इज अ थर्ड पर्सन हियर, अंडरस्टूड। एंड यू विल सी जब एटीपी का लेवल हाई होगा there will be a gradual shift of the reaction from hyperbolic to sigmoidal। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? जब there will be a gradual increase of ATP, जब आप ATP का concentration increase होगा, then there will be shift of the reaction। shift कहां से कहां होगा? hyperbolic to sigmoidal। hyperbolic to sigmoidal means Km value will be higher, eventually rate of the reaction will be lesser। understood? समझ रहे हो? understood? okay। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज और है, यहां पे मजा आएगा आपको। सेम एंजाइम का बात कर रहे हैं, सेम एंजाइम का बात कर रहे हैं। मैं आपको यहां पे बताया था कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, राइट। आप देखो तो बेसिकली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज द सबस्ट्रेट, ये है प्रोडक्ट, एंड एंजाइम क्या है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, राइट। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, लुक एट इट अगेन। सबस्ट्रेट क्या है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है इसका सबस्ट्रेट, एंड वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तो आप यहां पे क्या देखेंगे? यहां पे देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ए जो इसका इंटरमीडिएट है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ये जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो इंटरमीडिएट है इसका कंसेंट्रेशन हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, एंड वी विल सी the influence of this intermediate on the action of phosphofructokinase। देखो ये है सबस्ट्रेट, ये है वेलोसिटी। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पे हम लोग फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो कि ये वाला है इंटरमीडिएट, इसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पे देखो 0 माइक्रोमोलर, यहां से थोड़ा इंक्रीज किया 0.1 माइक्रोमोलर, और इंक्रीज किया 1 माइक्रोमोलर। तो जब आप कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, यू विल सी देयर इज ए ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम सिग्मोइडल टू हाइपरबोलिक। दिस इज सिग्मोइडल, राइट, एंड दिस इज हाइपरबोलिक। ग्रेजुअल इंक्रीज। so sigmoidal to hyperbolic मतलब Km will be lesser, Km will be lesser, reaction will be faster। अब कब हो रहे? when you are increasing the concentration of fructose 2,6 bisphosphate। understood the influence of fructose 2,6 bisphosphate on the reaction of fructose and phosphofructokinase। understood? so previous slide में मैंने क्या दिखाया था? सेम मैकेनिज्म दिखाया था इन प्रेजेंस ऑफ अनदर थर्ड पर्सन एटीपी। जब एटीपी का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रहा था, अगेन देयर वाज अ शिफ्ट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन वाज डाउन। सेम थिंग यहां पे जब फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को आप इंक्रीज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। दैट मीन्स फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट विल इन्फ्लुएंस, विल एक्टिवेट द सेम एंजाइम। ओके, नाउ so what you have understood, ATP will do reverse। मतलब ATP का जब कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ATP का जब कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ATP क्या करेगा? रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। बट इसका कंसेंट्रेशन जब इंक्रीज होगा, रिएक्शन को और एक्टिवेट कर देगा। अंडरस्टूड? सो दो डिफरेंट मैकेनिज्म। इसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज मतलब एंजाइम का फंक्शन इंक्रीज, मतलब एंजाइम का एक्शन इंक्रीज होगा। बट ATP का कंसेंट्रेशन इंक्रीज मतलब दैट विल बी डिक्रीज्ड, क्योंकि फंक्शन विल बी डिक्रीज्ड। आप जब दोनों को एक साथ देखेंगे तो क्या होगा? चलो यहां पे देखेंगे, दोनों को देखेंगे। यहां पे क्या है? यहां पे हम लोग देख रहे हैं एटीपी कंसेंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं,
वी आर इंक्रीजिंग एटीपी कंसेंट्रेशन। एंड वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, ठीक है। देखो तो सेम हम लोग सबस्ट्रेट भी इंक्रीज आपको तो करना ही है, सबस्ट्रेट अगर इंक्रीज नहीं करोगे तो एंजाइम कैसे होगा, सबस्ट्रेट तो इंक्रीज करना है। बट यहां पे यू आर डीलिंग विद बोथ एटीपी एंड डिस इंटरमीडिएट। आप एटीपी को भी इंक्रीज कर रहे हो एंड ये जो इंटरमीडिएट है इसको भी इंक्रीज कर रहे हो। देखो एटीपी तो एक्स एक्सिस से आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि एटीपी को इंक्रीज कर रहे हो, एंड फ्रुक्टोज 2 बिस्फॉस्फेट का भी आप इंक्रीज कर रहे हो। देखो 0.1 माइक्रोमोलर 1 माइक्रोमोलर इंक्रीज कर रहे हो। अब क्या देख रहे हो, आफ्टर सर्टेन लाइक सम 1 मिलीमोलर आप देख रहे हो ऑल द रिएक्शंस आर कमिंग डाउन। इसका मतलब who is more powerful to control glycolysis, who is the boss, who is the boss to control glycolysis? ATP is the boss, ATP is the boss, understood? चाहे कितना भी आप इसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज करो, अगर एटीपी का कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स योर ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन शुड बी डाउन। एंड दिस इज ऑब्वियस, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लाइकोलिसिस होने से हम लोग को क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। तो जब एटीपी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इट विल नेवर अलाउ एनी फर्दर ग्लाइकोलिसिस, दैट्स इट। सो एवरीथिंग विल बी कंट्रोल एट द लास्ट बाय एटीपी। अगर एटीपी ज्यादा है तो नो मोर ग्लाइकोलिसिस, अगर एटीपी कम है तो देयर विल बी ग्लाइकोलिसिस, दैट्स इट। अंडरस्टूड? ओके, नाउ देखो द थर्ड एंजाइम पायरुवेट काइनेज। अब देखो पायरुवेट काइनेज कैसे रेगुलेट होता है। पायरुवेट काइनेज रेगुलेट होगा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन। देखो पायरुवेट काइनेज क्या करेगा, सिंपल, फॉस्फेनल पायरुवेट टू पायरुवेट। आई रिपीट अगेन, फॉस्फेनल पायरुवेट टू पायरुवेट। सो देखो ये है फॉस्फेनल पायरुवेट, ये है पायरुवेट, राइट? फॉस्फेनल पायरुवेट टू पायरुवेट। यहां पे ये जो पायरुवेट काइनेज है एक पिंक कलर में है, एक ग्रीन कलर में है, राइट? टू अंडरस्टैंड, एक पिंक कलर में है, एक ग्रीन कलर में है। अब थोड़ा डिफरेंस देखो, जब पिंक कलर में है यहां पे फॉस्फेट अटैच्ड है, जब ग्रीन कलर में है यहां पे कोई फॉस्फेट अटैच्ड नहीं है। तो जब फॉस्फेट अटैच्ड है इट इज फॉस्फोरिलेटेड, जब फॉस्फेट अटैच्ड नहीं है दिस इज डीफॉस्फोरिलेटेड। समझ रहे हो ना? ओके, नेक्स्ट, जब फॉस्फेट अटैच्ड है इट इज रिटन लेस एक्टिव, जब डीफॉस्फोरिलेटेड है इट इज मोर एक्टिव। नाउ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज who will control between this phosphorylation and dephosphorylation? Who will control? Look what is written here. Blood glucose level. Blood glucose level will regulate whether it will be in phosphorylated or in dephosphorylated. Now let us understand, then you will understand, then we will see. High blood glucose level मतलब आपको मैंने क्या बताया था, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब क्या है, इसको अभी डाउन करना है, ग्लूकोज लेवल को डाउन करना है। तो जब ग्लूकोज लेवल को डाउन करना है तो ग्लाइकोलिसिस शुड बी मोर। यू अंडरस्टूड द बेसिक थिंग। ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है मतलब क्या, ग्लूकोज लेवल को अभी कम करना है। तो कैसे कम करोगे, ग्लाइकोलिसिस को ऑन करो। तो देखो जब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है तब इट विल बिकम more active, means dephosphorylated. Understood? जब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, तब तो ग्लाइकोलिसिस एनकरेज नहीं होना चाहिए। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल में ग्लाइकोलिसिस शुड नॉट बी एनकरेज्ड, राइट? ग्लाइकोलिसिस नहीं होना चाहिए। सो दैट विल बी फॉस्फोरिलेटेड। फॉस्फोरिलेटेड मतलब लेस एक्टिव। अंडरस्टूड? मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एंजाइम को आप कंट्रोल कर सकते हो, either using allostatic mechanism or by making phosphorylation or dephosphorylation or at the level of gene expression. There are many ways actually you can do it, right? So this is a classic example of pyruvate kinase जहां पे एंजाइम का फंक्शन रेगुलेट होगा by a process called phosphorylation and dephosphorylation. Understood?
Shivam, arginase. Yes, I was about to tell you that arginase is only found in liver. Very good, very good. Correct. Now देखो, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के बारे में मैंने बात कर रहा था, एक बार देखो, GLUT1 कहां मिलेगा? ऑल मैमेलियन टिश्यूज में आपको मिलेगा. इसका केएम देखो 1 मिलीमोलर. GLUT2 लीवर एंड पैनक्रियाटिक बीटा सेल में मिलेगा. GLUT3 ऑल मैमेलियन सेल्स. GLUT4 मसल एंड फैट सेल्स. GLUT5 ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन. यहां से आपको डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन दे देगा. दिस स्लाइड इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ग्लाइकोलिसिस, आई नो, बट मैंने जानबूझ कर रखा क्योंकि मैं ग्लूट पे बात कर रहा हूं, सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन. डायरेक्ट आपको दे देगा, सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस. तो अगर ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड पायरुवेट टू ग्लूकोज, दो स्टेप को आप पैरेलल स्टडी करोगे, आप देखोगे जो 3 स्टेप है, 3 स्टेप, कौन सा 3 स्टेप? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोरूटोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज. ये जो 3 स्टेप है, दीज स्टेप्स आर ओनली फॉरवर्ड, वन साइडेड. बाकी जो स्टेप है ऐसे. अंडरस्टूड? सो ग्लाइकोलिसिस का जो टोटल 10 स्टेप्स है, यहां पे कितना स्टेप है? 3. यहां पे कितना है? 7. अंडरस्टूड? ओके. नाउ सो ये जो बाकी जो 7 है, 7 चाहे इधर हो चाहे उधर हो, सेम एंजाइम विल कन्वर्ट. सेम एंजाइम इज इन्वॉल्व, बट कहां आपको डिफरेंट एंजाइम मिलेगा? कहां पे डिफरेंट एंजाइम है? ये जो 3 स्टेप है, ये जो 3 स्टेप है, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम है. इट्स लाइक, देखो, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोरूटोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज. यहां पे देखो, पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसिटेट टू फॉस्फोनिल पायरुवेट. यहां पे एंजाइम का नाम आप याद रखो, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोनिल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज. ठीक है? ये एंजाइम का नाम आपको पूछेगा, दे विल आस्क यू द नेम ऑफ दिस एंजाइम. सिमिलरली फॉस्फोरूटोकाइनेज, फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेटेज, फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेटेज. नेक्स्ट, इसका एक्सोकाइनेज, इसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, क्योंकि फॉस्फेट को आप रिलीज करोगे तो यू नीड फॉस्फेटेज, फॉस्फेट को ऐड करोगे तो यू नीड काइनेज, फॉस्फेट को रिलीज करोगे तो यू नीड फॉस्फेटेज. जस्ट ऑपोजिट, राइट? तो काइनेज will be responsible for phosphate addition, phosphatase will be responsible for phosphate release. Okay, next, यहां पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, यहां पे मैं 2 साइकिल के बारे में बात करूंगा. नंबर 1, ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल, which is also known as Cori cycle. Another one, ग्लूकोज एलानिन साइकिल. अब देखो, यहां पे देखोगे लीवर एंड मसल के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन होता है भाया ब्लड. देयर आर 2 ways. कैसे होगा? यहां पे एक देखो, ग्लूकोज एंड लैक्टेट, ग्लूकोज एंड लैक्टेट साइकिल. तो लीवर से मसल में आएगा भाया ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से पायरुवेट होगा, जैसे प्रोसेस होता है. लैक्टेट से भी आपको पायरुवेट मिल सकता है. लैक्टेट आपको कहां से मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी आस्किंग, सर लैक्टेट कहां से आ गया पिक्चर में? लैक्टेट कहां से आ गया? देखो, ग्लूकोज टू पायरुवेट है ऑक्सीडेटिव एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस. अगर पायरुवेट के बाद देखो, आपको ग्लूकोज टू आपको क्या मिला? पायरुवेट. यहां तक आपको मिलेगा, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, चाहे ऑक्सीजन हो और ना हो. यहां से रास्ता थोड़ा चेंज हो जाएगा. यहां पे अगर ऑक्सीजन हुआ तो रास्ता अलग होगा, अगर नहीं हुआ तो रास्ता अलग होगा. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो आपको क्या मिलेगा? एसिटाइल कोई. अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हुआ तो लैक्टेट. अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है. सो बट लैक्टेट से आपको फिर वापस पायरुवेट मिल सकता है. लैक्टेट से यू कैन अगेन गेट बैक टू पायरुवेट प्रोवाइडेड ऑक्सीजन इज अगेन कम बैक. राइट? ये तो आपको पता है, बहुत बेसिक फिजियोलॉजी है. ये सब चीज आप 8th स्टैंडर्ड पे पढ़े हो, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 या तो 9th स्टैंडर्ड पे पढ़े हो, राइट? बेसिक, वेरी बेसिक थिंग. सो उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि लीवर एंड मसल का जो कम्युनिकेशन है,
थ्रू ब्लड, एक बार देखो कि इस फॉर्मेट से कहां से आएगा। तो ग्लूकोज आएगा फ्रॉम लिवर टू मसल, तो मसल में ग्लूकोज टू पायरुवेट होगा, यहां पे लैक्टेट टू पायरुवेट भी हो सकता है, एंड लैक्टेट में अगेन कम टू लिवर फ्रॉम मसल, राइट। सो दिस साइकिल इज नोन एज ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल विच इज नोन एज कोरी साइकिल। ओके, सो आपको सिंपली क्वेश्चन दे देगा एमसीक्यू में, कोरी साइकिल is all about glucose alanine cycle, glucose lactate cycle, pyruvate something cycle, phosphoryl pyruvate something cycle. Understood? So at least नाम अगर याद रखोगे तो you can easily come to point. Next, glucose alanine cycle, exactly similar to that. तो ग्लूकोज आएगा मसल में, ग्लूकोज टू पायरुवेट, अब एलानिन से भी पायरुवेट बनेगा, एलानिन से भी पायरुवेट बनेगा, कहां से, कैसे, बाई एमाइनेशन प्रोसेस, बाई एमाइनेशन। तो पायरुवेट से एलानिन कैसे बनेगा, बाई डीएमाइनेशन, अमाइनो ग्रुप को हटाओगे, बाई एमाइनेशन it will be pyruvate, by deamination it will be alanine, like that. So again alanine will come here to pyruvate, glucose to pyruvate. So again another synchronization between liver and muscle, क्योंकि liver and muscle का coordination हमेशा रहता है, always through blood. So it could be either through glucose lactate or through glucose alanine. Okay. बोलो, आप बताओ, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो आप बहुत बार पढ़ चुके थे, राइट। कुछ नया सीखने को मिला ग्लाइकोलाइसिस में, व्हाई ओनली एलानिन, क्योंकि दैट इज द वन व्हिच इज सिमिलर टू पायरुवेट। अगर एलानिन का स्ट्रक्चर देखोगे एंड पायरुवेट का स्ट्रक्चर देखोगे, they are very similar, there is only difference of amino group, nothing else, that's why it is alanine, nothing else. Understood, Saki? Look at the structure of alanine and pyruvate, the difference will be only at the level of amino group. बता दिया श्रीदपा, anything else? ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया? ओके, थैंक यू, बहुत नया कुछ सीख लिया। ओके ओके, फाइन, गुड, ठीक है। सो ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा पढ़ो अच्छे से। आज पता चला कि ग्लाइकोलाइसिस में केवल 8 एटीपी अलावा भी कुछ होता है, ध्यान दे देखो, हर एक स्टेप को अगर अच्छे से पढ़ोगे एंड इफ यू कैन रियली अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यू कैन कम टू नो एनीथिंग। लक्ष्य, वेरी गुड क्वेश्चन सर, इज देयर एनी बुक यू वुड रेफर? देखो, यू कैन फॉलो एनी बुक, टू बी ऑनेस्ट, आप कुछ भी बुक पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। यू कैन फॉलो एनी बुक, बट दैट इज सम गुड बुक, दैट इज माई रिक्वेस्ट। मतलब डोंट स्टडी समथिंग लाइक यू सत्यनारायण। देखो, ऐसे ऑनलाइन बोलना हमको बहुत बुरा लगता है, समझ रहे हो ना? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आई डोंट लाइक टू से कि ये किताब मत पढ़ो, वो किताब मत पढ़ो, बट यू आर स्मार्ट इनफ, यू शुड अंडरस्टैंड कि किस किताब में अच्छे से इंफॉर्मेशन है, कौन सा किताब पढ़ने से हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। यू आर स्मार्ट इनफ, प्लीज डोंट आस्क मी बिकॉज आई फील सो एम्बेरेस्ड टू आंसर इट। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम and for your presence. So I'll catch you again tomorrow. Good night.